So as I was telling you, let us discuss the various factors on which the demand of an individual buyer depends. So first obvious factors is own price of the commodity. So the demand of the commodity X depends upon the price of the commodity X. If the price of commodity X rises, its demand will fall down, and if price of the commodity falls, its demand will rise. Okay? Now, the interesting thing is that the demand of commodity X does not only depend upon the price of X, it also depends upon the price of other related goods, that is Y. So related goods are identified as substitute good and complementary good. How the price of substitute good affects demand of the given commodity, this we had discussed. So who would tell me what happens if price of substitute good falls? What happens to the demand of a given commodity? Increases? It also falls. That day I told you, remember, plus positive relation, सेम बिहेवियर है. अगर पेप्सी बेटे सस्ती होगी तो आप पेप्सी ज्यादा खरीदोगे, तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी. If price of Pepsi falls, demand for Coke will also fall, and vice versa. If price of Pepsi rises, yes, what happens to the demand of Coke? It also rises. अगर पेप्सी महंगी हो जाती है तो हम पेप्सी कम कर देंगे. क्यों? क्योंकि पेप्सी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोक के साथ, तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी. यहाँ पे गिवन कमोडिटी क्या है? कोक है. तो इसका मतलब कोक की डिमांड किससे अफेक्ट हो रही है? पेप्सी से, जो कि इसका क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स. Second type of related goods are identified as complementary goods. What are complementary goods? Anyone? नाम से कुछ क्लैरिटी हो रही हो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस which complete each other, or in other words, these are the goods which are jointly demanded to satisfy a particular want. कोई भी particular want को satisfy करने के लिए आपको ये goods इकट्ठे चाहिए होते हैं. jointly demand, joint demand होती है इनकी. For example, if you want to make a call, you ask me or you borrow mobile from me, I gave you mobile and took out my SIM from that. Would you be able to make a call? No. Mobile and SIM are complementary goods. Clear? If you want to have a cup of tea, I just gave you tea leaves. Would your demand be fulfilled? To make tea, you require water, sugar, milk, tea leaves, gas. Yes, all these are jointly demanded to satisfy particular want. Your friend borrows car from you, right? He says, I do not have money to hire a cab. Can you lend me your car? You gave him his car, your car, और आपने पेट्रोल निकाल लिया उसमें से. Would car be of any use? So which means car and petrol are complementary goods. क्या होते हैं complementary goods? जो कि एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं या जो कि jointly demanded होते हैं to satisfy a particular want. Right? Now how we are interested in knowing, our given commodity is X. We are interested in knowing how demand
of X depends upon price of Y, which is a complementary good. So again, I will be explaining, taking an example. We are taking the example of petrol and car. Car being the given commodity, that is commodity X, and price being its complementary good, that is commodity Y. X और Y complementary goods है, X given commodity है, Y उसका related good यानी कि complement है. हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर पेट्रोल की प्राइस में चेंज आता है तो कार की डिमांड किस तरह से अफेक्ट होती है. सो पेट्रोल, as I told you, is a Y commodity, car is a X commodity. तो बेटे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो पेट्रोल कार्स जो हैं उनकी डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के चलेगी नहीं. पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड लोग कम करेंगे, पेट्रोल कार की डिमांड कम करेंगे. ऑन दी अदर हैंड, अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी. यस, ठीक है. कार क्या है? गिवन कमोडिटी. पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड. तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी विल फॉल, and vice versa. That is, if price of complementary good falls, demand for given commodity will rise. यानी यहां पर क्या रिलेशनशिप के लिए क्या याद रखना है? माइनस का साइन. There exists negative relationship between demand of given commodity and price of its complementary good. Anyone having any doubt? सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होता है तो गिवन कमोडिटी कैसे अफेक्ट होती है? उसकी डिमांड भी कम हो जाती है. ऑन दी अदर हैंड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर प्राइस बढ़ता है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है. नेगेटिव रिलेशन. ठीक है, चले आगे. So far we have discussed two factors which affect the demand of a given commodity. Now move on to the third factor. Here I am rubbing all these factors so that we can write down the another factor. Still another factor जिसके ऊपर हमारी commodity के लिए जो demand है वो depend करती है, वो है income of the consumer. Third factor, income of consumer. I don't think I need to tell you how income affects demand. All of you would be knowing it. Generally speaking, आपकी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी तो आप गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे. पॉकेट मनी कम कर दी पेरेंट्स ने, डिमांड कम हो जाए. ठीक है, एवरी वन ऑफ यू थिंक इन द सेम वे और anyone thinks differently? पॉजिटिव रिलेशन, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी? नो, नॉट नेसेसरली. How income affects demand of the given commodity? It depends upon the type of the good. We identify two types of goods. One, normal goods. Another, inferior goods. So if anyone ever asks you, you are economic students, tell me, if income of the consumer increases,
how his demand will be affected. Suyash, wear your mask bete. You don't need to tell him कि भी income बढ़ेगी तो demand बढ़ेगी, इसमें क्या है? No. Firstly, you will be asking him, you tell me what type of good the consumer is consuming. Is he consuming normal good or he is consuming inferior good? दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल गुड्स को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, ये वो गुड्स हैं जिनके केस में इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से इनकी डिमांड कम हो जाती है. नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स whose demand rises with rise in income and falls with fall in income. Or technically speaking, normal goods are those goods whose income effect is positive. Income effect is positive. You need to write it down क्योंकि MCQs हैं, तो MCQ में ये भी ऑप्शन आ सकता है आपको. जब एग्जामिनर को पता है कि कंज्यूमर को नॉर्मल गुड के बारे में ये पता है कि इसकी इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसको ये भी पता है कि स्टूडेंट को ये भी पता है कि उसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है. इनकम इफेक्ट का मतलब इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड. इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड. तो अगर आपकी इनकम आपके गुड को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, यानी इनकम बढ़ती है तो आप उस चीज की डिमांड ज्यादा करने लग जाते हो, इनकम कम होने से आप उसकी डिमांड कम कर देते हो, तो यू आर द कंज्यूमर ऑफ नॉर्मल गुड्स. टेक एनी एग्जांपल. आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाते हो, आपको अच्छी लगती है, तो आपकी जितनी पॉकेट मनी आती है उसमें आपने अपना जो कोटा रखा हुआ है डेयरी मिल्क का, वो आपने मंथ में 10 चॉकलेट्स आप खाते हो. ठीक है. जब आपकी से पॉकेट मनी 500 रुपए है तो चॉकलेट्स की डिमांड 10 चॉकलेट्स है सपोज करो. अब आपके पेरेंट्स ने आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दी. नाउ योर इनकम इज से 700 रुपीज. यू विल कंज्यूम मोर ऑफ चॉकलेट्स. So let us say your demand for chocolates now increases to 12. Then chocolate will be considered as a normal good. नॉर्मल गुड की कोई एग्जाम्पल नहीं है. मैं आप मेरे से पूछो मैम एग्जाम्पल दो नॉर्मल गुड की, तो मैंने अभी आपको दी चॉकलेट, तो दैट डजंट मीन कि चॉकलेट डेयरी मिल्क चॉकलेट इज ऑलवेज अ नॉर्मल गुड. ठीक है. हियर इट इज अ नॉर्मल गुड. कैसे पता चला ये नॉर्मल गुड है? नॉर्मल गुड कौन से होते हैं? जिनके केस में इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड इस केस में बढ़ रही है, तो यहां पर डेयरी मिल्क नॉर्मल गुड. सो whenever you say or give the example of a normal good, ठीक है, तो उस केस में ये नहीं है कि कुछ गुड्स आप आइडेंटिफाई कर लो, ये डाल दो ये वाले नॉर्मल गुड है और ये वाले गुड्स जो है वो इंफीरियर गुड्स. वो गुड जिनके केस में इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है वो नॉर्मल है. ठीक. और जिनके केस में इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है वो इंफीरियर है. अब दूसरी केस करते हैं डिस्कस. अभी और अच्छे से इलैबोरेट करूंगी आपको. एग्जाम जब कंपैरिजन होगा ना तब और अच्छे से पता चल जाएगा. इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? सो इंफीरियर गुड्स आर एज ऑपोजिट टू normal goods. Those goods whose income effect is negative. यानी कि ये वो गुड्स हैं जिनके केस में इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाती है और इनकम के कम होने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है. ये वो गुड्स हैं जिनके केस में इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाती है और इनकम के कम होने से इनकी डिमांड
कम हो जाती है. लेट अस सी हाउ. सो अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. देयर इज अ पर्सन हु इज अर्निंग 10,000 rupees per month. ठीक है. एंड जब वो अपनी ग्रोसरी लेने जाता है, क्योंकि 10,000 इनकम काफी कम है, उसकी फैमिली में से 3 मेंबर्स हैं, तो जब जो फूड बनता है पूरे मंथ में, तो 1.5 लीटर ऑयल कंज्यूम होता है एक मंथ में. वो क्या करता है, वो 1 kg लेता है डालडा और 1/2 kg वो लेता है देसी घी. ठीक है. Why he is consuming less of desi ghee? He cannot afford more of desi ghee in this income. So आपको पता है डिफरेंस, डालडा घी काफी सस्ता होता है और देसी घी काफी महंगा होता है. ठीक है. ये प्योर घी होता है. Let us say his income increases to 15,000 per month. ठीक है. Now he feels he can afford desi ghee. टोटल कंजम्पशन उसके घर में 1.5 लीटर होती है. अब वो क्या करेगा? आप उसकी जगह होते तो क्या करते, मेरे को बताओ. आप कितना देसी घी लेते? आपकी इनकम बढ़ गई है, और कितना डालडा लेते? एनी फिगर बोल दो. अच्छा, आपने कहा यू विल टेक 1 kg ऑफ देसी घी एंड 1/2 kg ऑफ डालडा. ठीक है. अग्री और नॉट? वन चाइल्ड हैज गिवन द आंसर. मैंने वो उसको लिख दिया यहाँ पे. आप में से किसी और का व्यू पॉइंट डिफरेंट है, हो सकता है, लेकिन ये सब अग्री करेंगे कि आप देसी घी की डिमांड बढ़ा देंगे और डालडा की कम कर दें. तीसरा केस और ले लेते हैं. लॉकडाउन लग गया, ये ऑटो रिक्शा वाला है, इसकी इनकम रहेगी 5,000 रुपीज. अब बताओ, 1.5 किलो उसने लेना है. अब वो क्या करे? डालडा ले लेगा कितना, और देसी 0. अब देखते हैं. सक्षम जी, आप अपनी क्लास में चलिए. आई एम रिमूविंग यू. ठीक है. अब देखो क्या हुआ. आप सिर्फ अब डालडा की तरफ फोकस करो. इनकम एंड 10,000, डिमांड है 1 kg. यहां पे लिख दूं ऐसे, इनकम डिमांड. इनकम है 10,000, डालडा की डिमांड कितनी है? 1 kg. इनकम है 15,000, डालडा की डिमांड कितनी है? 1/2 kg. इनकम है 5,000, डिमांड कितनी है डालडा की? 1.5 kg. मैंने सब डेटा आपके कहने पे लिखा है. मैंने अपनी तरफ से कोई हाइपोथेटिकल फिगर नहीं, आपने जो बोला लिख दिया. अब मुझे ये बताओ, आपकी जब इस पर्सन की जब इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड क्या हुई? कम हो गई. जब उसकी इनकम कम हुई, डिमांड बढ़ गई. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ती है, कम होने से कम होती. नॉर्मली ऐसा होता. इस केस में क्या हो रहा है? इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो गई और इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ गई. तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स. ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स. क्लियर? अब यहीं पर आप चाहे देसी घी की लिख लो डिमांड. डिमांड ऑफ देसी घी 10,000 पे कितनी थी? 1/2 kg. 15,000 पे कितनी हो गई? 1 kg.
5,000 पे कितनी हो गई? 0 kg। अब इधर छोड़ दो, इसको देखो, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो गई। सो ये गुड क्या हुआ? नॉर्मल गुड। ठीक है, दिस गुड इज अ नॉर्मल गुड। एनी गुड whose demand falls with rise in income and rises with fall in income is classified as inferior good. Reason पता चला? Why was he consuming dalda, 1 kg dalda? Because he could not afford this. Now that his income increases, he can afford desi, so he will replace dalda with desi. Yes, he can afford it now. पहले उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए वो सस्ती चीज ले रहा था, इंफीरियर गुड ले रहा था। इंफीरियर गुड्स, अब आप बोलो अच्छा मैम ये वो होते हैं इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं, लो क्वालिटी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एनी गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन, inferior for another. Any good can be normal for one and inferior for another. Take an example. से आपकी इनकम है 10,000 रुपए, या एक पर्सन ए है, उसकी इनकम है 50,000 रुपए। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचेस, तो वो हर महीने एक वॉच खरीद लेता है, सपोज टाइटन की। डिमांड ऑफ टाइटन वॉच इज 1। अब इसकी इनकम बढ़ गई, सपोजिंग हो गई 70,000। ठीक है, नाउ ही इज डिमांडिंग 2 वॉच ऑफ टाइटन। So for him, Titan is a normal good or inferior good? क्योंकि relation between demand and income is positive. Income बढ़ने से वो उसकी डिमांड ज्यादा कर। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, टाटा अंबानी ले लें। इसकी डेली इनकम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है। He is also fond of watches. सपोजिंग जब इसकी इनकम होती थी 5 लाख रुपए, तो ये रोलेक्स लेता था 1 और टाइटन लेता था 5। अब उसकी इनकम होगी 20 लाख रुपए। He will buy more watches? Yes. आप बताओ, रोलेक्स की ले लेगा 5, टाइटन कहेगा मैंने नहीं लेनी। टाइटन कौन लेता है? आपके लिए टाइटन क्या थी? नॉर्मल गुड। आपकी इनकम बढ़ी, आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी, उसके लिए क्या है? इंफीरियर गुड। ठीक है, जरूरी नहीं हमने अंबानी के साथ ही कंपैरिजन करना है, आप अपना कंपैरिजन कर लो किसी भी पुअर फैमिली के साथ। एक रिक्शा वाला है या ऑटो वाला है जिसके साथ आप आते हो, वो आपसे बात कर रहा है कि मेरे ना 10,000 रुपए, मेरे बेटे को शूज का बड़ा शौक है, तो मैं इसको ना यहाँ से जीटी रोड से लेके देता हूँ, हर महीने मैं इसको एक शू का पेयर ले देता हूँ, 200 रुपए का आता है। मैं चाहता हूँ मेरी इनकम बढ़ जाए, मैं कम से कम उसको 2 शूज ले दिया करूँ। लेके वो कहाँ से देगा? वहीं से लेके देगा, फुटपाथ से लेके देगा, 100-200 वाले, है ना। आपकी जो इनकम है, आपके पेरेंट्स की जो इनकम है, आपको भी शूज का शौक है, आपको एक वो ब्रांडेड ले देते हैं और एक कहते हैं बेटे ऐसे कर, इतनी तो नहीं है, ठीक है इनकम, तू 2 फिर वहां से आम शॉप से ले ले। अब जब उनकी हो जाएगी इनकम डबल, तो आप क्या करोगे? ब्रांडेड की डिमांड बढ़ा दोगे और फुटपाथ वाले शूज लेने बंद कर दो। होगा ऐसे? फॉर यू branded shoe is a, or Reebok is a normal good, and the other non-branded shoe is inferior. For him, that non-branded shoe is normal good.
क्योंकि अपनी इनकम के बढ़ने से उसकी नॉन ब्रांडेड गुड्स की डिमांड बढ़ती है। एनी कमोडिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल गुड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफीरियर गुड? टाइटन, रोलेक्स, एक्शन, नन ऑफ दीज। जिसको नहीं पता, जिसको लगता है कि इंफीरियर तो सब स्टैंडर्ड है, जो ये सोच के बैठे नाम से कि इंफीरियर गुड सब स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए नन ऑफ दी अबव। ना तो रोलेक्स वो कहेगा इंफीरियर है, ना वो कहेगा एक्शन के शूज इंफीरियर है, ना वो टाइटन की वॉच को इंफीरियर बोलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? नन ऑफ दीज। और यहाँ चलो चौथा भी एक दे दिया, कोई भी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे दिया से नॉन ब्रांडेड शूज, तो आप बोलोगे नॉन ब्रांडेड शूज इंफीरियर है? नहीं, सेम गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन, इंफीरियर फॉर अनदर। आपके लिए नॉन ब्रांडेड शूज इंफीरियर है, आपके ऑटो वाले के लिए वो नॉर्मल है। आपके लिए टाइटन की वॉच नॉर्मल है, अंबानी के लिए नॉर्मल टाइटन की वॉच इंफीरियर है। कार देख लो, आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, आप बोलोगे अच्छा एक और कार ले लेते हैं। कौन सी कार लोगे? मारुति की ले लोगे, हुंडई की ले लोगे। लेकिन अंबानी की इनकम बढ़ेगी तो क्या ये वाले ब्रांड्स की कार की डिमांड बढ़ाएगा? इसकी डिमांड वो कम कर देगा, है ना। वो रोल्स रॉयस लेगा, फरारी लेगा, बाकी पोर्श लेगा, बीएमडब्ल्यू लेगा। उसके लिए ये वाली कार्स क्या हो गई? इंफीरियर। क्लियर? तो हमें क्या समझना है, हम ये कर रहे थे कि आपकी इनकम या कंज्यूमर की इनकम कंज्यूमर की डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। सो यू कैनॉट आउटराइटली से दैट with the increase in income demand increases. You have to tell that the effect on demand of change in income depends upon the type of the good. Goods are of two types. Number one, what are normal goods? Whose income effect is, that is whose demand increases with increase in income and falls. So in case of normal good, if income of the consumer increases, demand for normal goods also increase, and vice versa. मतलब if income of the consumer falls, demand for such good also falls. Second type of goods कौन से होते हैं? Inferior goods are those goods whose income effect is, that is whose with increase in income their demand, and with decrease in income their demand rises. So in case of inferior goods, if income of the consumer rises, demand for such goods will fall. And if income of the consumer falls, demand of inferior good will rise. Is it clear? ठीक है? Okay, any doubt? यहाँ तक बेटे कोई doubt? If there is any doubt, you can ask. Tomorrow we will be discussing another factors. कल दोनों factors हो जाएंगे, taste and preferences and expectation regarding future price. अभी किसी को doubt है तो you can ask.